Hello, the curious learner of class 10th. Welcome again to the new video of History, the Rise of Nationalism in Europe, the chapter which we are doing now. This is the part 4 and 3 parts of this chapter has been uploaded. Please watch that all the 3 parts and then start watching this one. Otherwise, you people may not understand. राइट चलिए आज हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले एक चीज जरूर बताऊंगा कि अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, नहीं तो आपका जो दिमाग है ना कहीं आपको इंसिस्ट करेगा कि उठो और चलो। तो आप लोग अपना सीट बेल्ट बांध के बहुत टाइटली बैठ जाइए और पूरा थोड़ा अटेंशन देके सुनिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Today, the topics introduction, the French Revolution and the idea of nations, the making of nationalism in Europe, already we have completed successfully in the previous videos. Today, the topic which we are going to start, that is the age of revolution, that is from 1830 to 1848. From 1830 to 1848. So, let's get started. Before entering into this chapter, let's see the timeline once what we have studied till now. We have studied that 1789, that how French has got independent, how the peoples were came to the road. There was a huge revolution. After that, they formed their government, which is constitutional monarchy. Constitutional monarchy was unsuccessful. Then Maximilian Robespierre. Maximilian Robespierre के बाद एक डायरेक्टरी रूल वाली डायरेक्ट गवर्नमेंट एक फॉर्म होता है। उसके बाद डायरेक्टरी गवर्नमेंट थोड़े प्रॉब्लम में आती है, वो नेपोलियन के हेल्प लेते हैं और फाइनली नेपोलियन 1799 में क्या होता है, क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। और 1804 में he is launching a civil code. Already in the previous videos we have discussed about what is civil code, and it was also known as a Napoleonic code. Its merit and demerits already we have discussed in the previous video. Then 1815, what happens? The Napoleon got defeated by Prussia, Austria, and Britain and Russia. These 4 countries comes together and they defeating Napoleon in 1815, and then the conservative government is establishing there. What is the meaning of conservative? That also I told in the previous videos. Please switch on that video and see and then come to this video. 1815 to 1830, it was it was known as the conservative era. In the sense, 1815, the conservative peoples, the old ideas people, those who believe on the monarch government dictatorship, they were ruling from 1850 to 1813. They were slowly establishing their future in the various territories. And 1830 to 1845, people, those who know about the what is the democratic country, what is the rights, like liberal middle class, these peoples opposing this conservative ideas and gaining democratic or independent, we can say one type of independent gaining from the dictatorship, right? So this is what the topic which we are going to discuss, that what happened from 1830 to 1845, right? So let's discuss. Here you can see that a conservative reign tried to consolidate their power. Liberalism, nationalism came to be increasingly associated with revolutions in many regions of Europe, such as the Italian and German state, the provinces of Ottoman emperors, Ireland and Poland. अभी ये समझने वाली बात क्या है, 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव रीन शुरू हो चुकी थी, उस समय बहुत सारे जो लिबरल एंड नेशनलिज्म वाले थे लोग, पीपल्स थे, वो लोग धीरे धीरे क्या करने लग गए थे, ये कंजर्वेटिव आइडियाज के खिलाफ लड़ने लग गए थे, रेवोल्यूशंस करने लग गए थे। मतलब उनको मोनार्क डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, दे वांट फ्रीडम, दे वांट व्हाट, फ्रीडम। दैट इज व्हाट दे स्टार्टेड। एंड यूरोप में जैसे इटली में हो गया, जर्मन में हो गया, फ्रांस में हो गया, और जैसे ऑटोमन एम्परर टर्की वगैरह हो गया, वहां पे भी
क्या हुआ था, रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था, क्योंकि लोग डिक्टेटरशिप को अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू हो चुका था और लोगों के मन में ये बस चुका। तो लोग अभी चाहते थे क्या, डेमोक्रेटिक। These revolutions were led by the liberal nationalists, belongs to the educated middle class elites, among who were the professors, school teachers, clerk, member of the commercial middle class. ये लोग थे जो उस समय क्या शुरू किए थे, हमारा रेवोल्यूशन शुरू किया था। जैसे इंडिया में एक हम नजर डाल देते हैं, इंडिया में जो फ्रीडम मूवमेंट था, इंडिया में क्या एक्टिवली पीजेंट्स थे, जो पुअर कैटेगरी के लोग थे, जो अपने सब्सटैंशियल फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं वो करते थे, वो लोग क्या पहले फ्रीडम फाइटिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे? नहीं। वही मिडिल क्लास हम बोल सकते हैं जो एजुकेटेड क्लास थी, गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन के बाद बहुत सारे मिडिल क्लास रोड में आए थे, और मिडिल क्लास लोग ही हम बोल सकते हैं जो इस हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटिंग में भी पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि उनको ये नॉलेज था कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे जो मिडिल क्लास थे, इन लोगों को भी लग रहा था या बिलीव हो चुका था जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसीलिए ये लोग क्या किए थे, रेवोल्यूशन करना चालू कर दिए थे। तो देखते हैं कहां पे कैसे, ऐसे कुछ पूरे रेवोल्यूशन यूरोप का तो बताएंगे तो कम से कम 8-10 दिन में खत्म होगी। तो यहाँ पे कुछ एरिया की इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस के बारे में बताया गया है, कैसे अपराइज हुआ था क्या रेवोल्यूशन। चलते हैं देखते हैं। पहले जैसे फर्स्ट रिवॉल्ट टुक प्लेस इन द फ्रांस जुलाई 1830। कब? 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या एकत्रित होते हैं, और जो कंजर्वेटिव जो हुआ था आफ्टर 1815 उसको हटा देते हैं, और वो लुइस फिलिप्स को अपॉइंट करते हैं एज ए किंग। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वाला हमने पढ़ा था, कहा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, याद करो 1789 के बाद जब टेनिस कोर्ट में लोग एकत्रित हुए थे, उसके बाद फ्रांस बिकम और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हमने डिस्कस किया था, जस्ट रिकॉल दैट। तो सेम यहाँ 1800 जो 1830 जुलाई में रेवोल्यूशन हुआ, उस समय यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया अंडर लुइस फिलिप्स, अंडर लुइस फिलिप्स। एंड कैलमन वो मैक्रोनिच ऑस्ट्रियन पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमेट है, उनने एक चीज स्टेट किया था, उनने बोला था फ्रांस को सर्दी होती, फ्रांस को छींक आएगी तो पूरे यूरोप को क्या होगा, सर्दी हो जाती है। तो वैसे ही फ्रांस में जैसे ही ये बदलाव दिखाई दिया, वैसे ही पूरा यूरोप में ये बात फैलने लग गई कि भाई वो इंडिपेंडेंट हो गया है, देन वी आल्सो हैव टू रेज आवर वाटर, raise the revolutions to free from the monarch ideas। तो एनीवे यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में भी ये धीरे धीरे स्प्रेड होने लग गया था। बात समझ रहे हो? तो जैसे हमने देखा था क्या हुआ, फ्रांस को सर्दी हो जाती है तो पूरे यूरोप, तो यानी यूरोप में भी ऐसे क्या, ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लग गया था। किसका? ये रेवोल्यूशन, कि उनको भी मोनार्क रूलर से क्या होना है, फ्री होना। वैसे आगे क्या है, जुलाई रेवोल्यूशन एक शुरू होता है, कहां पे, यहाँ आप देख रहे होंगे नेदरलैंड और पोलैंड में, बेल्जियम में, नेदरलैंड और बेल्जियम में आप देख रहे होंगे। यहाँ पे ये दोनों पहले यूनिटरी था, मतलब दोनों मिलके थे। उसके बाद ये क्या हुआ, वैसे ही जैसे फ्रांस में ये हमारा रेवोल्यूशन होती है, रेवोल्यूशन होने के बाद बेल्जियम की जो कैपिटल हमने देखा था ब्रुसेल है, ब्रुसेल में एक रेवोल्यूशन अपराइज होती है, और वो रेवोल्यूशन क्या इतना बढ़ जाता है कि यूनाइटेड किंगडम जो नेदरलैंड था वहां से बेल्जियम अलग होकर अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाता है। बात समझ गए? उसको बोला जाता है जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ द नेदरलैंड, राइट। इसके बाद जो आती है, इसके बाद आपका रहता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब यहां से हम आ जाएंगे सीधा यहाँ पे, जो ग्रीस आपको दिख रहा है, ये जो एरिया था ये ऑटोमैन एम्परर के अंडर में था। 1821 में यहाँ पे शुरू होता है इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमैन एम्परर्स, क्योंकि उस समय ये जो एरिया था ऑटोमैन एम्परर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। उसके बाद
यहाँ पे जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, ये नेशनलिस्ट बहुत सारे ऑटोमन एम्परर के समय एग्जाइल हो गए थे, बाहर बहिष्करण कर दिया गया था। ये लोग के सपोर्ट में और कंट्री ग्रीक के अंदर जो रेवोल्यूशनरी थे या हम बोल सकते फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लोग हेल्प लेते हुए इनके खिलाफ, किसके खिलाफ, जो ऑटोमन एम्परर के खिलाफ लड़ाई शुरू की है। वैसे ही बहुत सारे पोएट, प्लेस, आर्टिस्ट, बहुत सारे कार्टून्स बनाए, वो सब बना के क्या मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ लोगों को एकत्रित कर रहे थे, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को बिलोंग क्या इंक्रीज कर रहे थे ग्रीस के अंदर। और वैसे ही धीरे धीरे 1824 में बहुत एक मर जाते हैं जो पोएट लॉर्ड बेरिन ऑर्गेनाइज फंड अरेंज किए थे, और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 में साइन होती है और ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाती है। मतलब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, जैसे यहाँ से शुरू होती है 1830 से रेवोल्यूशन तो मोनार्क को हटाने के लिए, और धीरे धीरे पूरे यूरोप में वो कैसे स्प्रेड होता है, वही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद इसकी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को देखेंगे। उस समय यूरोप में जब ये रेवोल्यूशन चल रही थी, रेवोल्यूशन चलने के समय यूरोप की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, लोग कैसे रह रहे थे, प्रॉब्लम तो कुछ हो नहीं रही थी, कैसे लोग रह रहे थे, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं 1830 से 1848 के बीच। यहां देखना रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग, मतलब लोगों के अंदर एक रोमांटिक मतलब जो सेंस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ही हम बोल सकते हैं वही था, और नेशनल फीलिंग लोगों के अंदर कैसे क्रिएट हुई थी। अब यहां देखना नेशनलिज्म केम अक्रॉस बाय आइडिया ऑफ कल्चर like poetry, story and music along with the wars and the territorial expansion। उस समय जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रही थी, उससे ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि लोग जैसे वहां पे क्या हो रहा था कि हम एक छोटे टेरिटोरी में रह रहे हैं, आप समझ लो कि यहाँ पे एक छोटे टेरिटोरी में कोई राजा रूल कर रहा है, राजा को रात में सपना आएगा इसके बगल में और एक टेरिटोरी है, मान लो राजा को रात में सपना आएगा कि भाई इसको हमको ये जो बगल वाले टेरिटोरी को ऑक्यूपाई करना है, तो ये क्या करेगा, सुबह होते ही इसमें अटैक किया और इसको क्या किया, इसके अंतर्गत ले लिया, उसके बाद ये दोनों एक टेरिटरी बन गए। यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो आइडेंटिटी थी कल सुबह तक, वो आइडेंटिटी रात तक चेंज हो गई। मतलब यहाँ पे ये जब चीजें थी ना, पोएट्री, स्टोरी, म्यूजिक बहुत लिखे गए, उसके बाद ये जो लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग को क्या किया गया, क्रिएट किया गया। Romanticism criticized the glorified of the regions and science focused on the regions and science। अब ये समझना बहुत सारे उस समय रीजन्स दिए गए थे, क्रिटिसाइज्ड ग्लोरीफाई द रीजन्स, दैट मींस जो मोनार्क को ग्लोरीफाई करता था वो सब रीजन्स को लोग क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, एंड फोकस्ड ऑन द इमोशंस, इंट्यूशंस एंड द मिस्टिकल फीलिंग्स। लोगों के अंदर वो फीलिंग को क्रिएट करना था कि ये हमारा देश है, हम डेमोक्रेटिक बनना चाहते हैं, हमको भी राइट्स हैं, हमारा भी कुछ अधिकार है, ये क्रिएट की जा रही है, जिसको हम बोलते हैं आइडिया ऑफ शेयर कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर, पास्ट एंड बेसिस ऑफ द नेशन। हर नेशन के बेसिस में कॉमन कल्चर का ये क्या कर रहे थे, डेवलपमेंट वहां पे शुरू हुआ था। उसके बाद फ्रेंच पेंटर डेलारोक्सिस incident where 20,000 Greeks were said to have been killed by Turks on the island of the Charles। यहाँ पे एक आइलैंड है ग्रीक के पास, वो आइलैंड में 20,000 ग्रीक को कौन, टर्कीज, ऑटोमन एम्परर्स, टर्की कंट्री है, वहां पे जो राजा है वो ऑटोमन एम्परर्स है, उनने मार दिया था। ये क्या हुआ, पेंट करके बताया गया कि 20,000 ग्रीक को मार दिया गया। ये देखते ही लोगों के अंदर एक भावना तो आएगी यार हमारे लोगों को मार दिया, बात समझ लो। तो वैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लोगों के अंदर क्रिएट की जा रही थी कि हम एक हैं, हमारा देश ग्रीक है। उस समय कैसे चल रहा था। जॉन गॉटिफाइड हर्डर, एक जर्मन, डिस्कवर जर्मन कल्चर अमंग द कॉमन मैन। जैसे डैशबोर्ड एक फोक सॉन्ग था, उसको हमने बनाया, फिर एक डांस था कॉमन वोक्स टेस्ट वाज पॉपुलराइज्ड, उस समय इन्होंने पॉपुलराइज किया, ऐसा एक बनाया जर्मन कल्चर को बताने के लिए, जर्मन कल्चर को बताने के लिए जर्मनी में, जर्मन में भी इनको क्या करना था, जर्मन के जो डिक्टेटर थे उनसे इनको फ्री होना था, राइट। वैसे बहुत हर एक कंट्री में से शुरू हो गया था। कलेक्टिव वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वो क्लोज टू कैरी मैसेजेस टू द इलिटरेट ऑडियंस।
कभी देखो वर्नाकुलर लैंग्वेज वेरियस लैंग्वेजेस यूज की जाती थी, फिर बहुत सारे जो बोलते हैं ना कि हम छोटे छोटे कहानियां बोलते हैं, छोटे छोटे गाना ऐसे बोलते हैं, जैसे कोरोना के लिए आप देख रहे होंगे गली गली में एक माइक घूम रही है कोरोना के से कैसे हम बच्चे वो गाना गाते हुए, उसको हम फोकलोर बोलते हैं। वैसे बहुत सारे उस समय शुरू हो गया था इलिटरेट लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखो इससे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन। जॉन गॉडफ्राइड ने क्या डिस्कवर किया था, वहां पे सेंस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन बिलोंग बनाने के लिए आप डैश बॉक्स बना सकते हो, लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से भी क्रिएट होंगे, तो बहुत केयरफुली आपको ये सब नोट करना पड़ेगा। पोलैंड वाज पार्टीशन बाय ग्रेट पावर्स। पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया था, ऑस्ट्रिया ब्रिटेन और रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ये दोनों ने तीनों मिलकर अलग कर दिए थे। एंड फीलिंग केप्ट अलाइव बाय म्यूजिक एंड लैंग्वेज। Polish language was forced out and Russia became the common language. अभी समझो पोलैंड को इन्होंने क्या किया, अलग किया, और इसमें पोलिश लैंग्वेज को निकाल दिए, रशियन लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बना दिए। Members of the clergy in Poland began to use the language as weapon of national resistance. वो लैंग्वेज को इनने नेशनल रेसिस्टेंस मान लिया, क्योंकि वो लैंग्वेज हटा दिया गया, इनकी जो कॉमन लैंग्वेज थी, मदर लैंग्वेज थी, उनको इन लोगों ने हटा दिया। इसीलिए इन लोगों ने भी उनके खिलाफ क्या करना चालू कर दिया, लैंग्वेज को बेस बना के नेशनलिज्म क्रिएट करना चालू कर दिया था। Polish was used church gathering and seen as symbol of struggle against the Russian dominance. रशियन डोमिनेंस को आउट करने के लिए चर्च में एकत्रित होते थे और वहां पे ये सब चीजें कैरी आउट की जाती थी, नेशनलिज्म शुरू करते थे। Karl Karpenitz celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like Polanis Majorette इन नेशनलिस्ट सिंबल। ये पोलैंड में यूज हो रहा था। ऐसे बहुत सारे ओपेरा, म्यूजिक, फोक टेल्स, ये सब यूज की जाती थी, डांसेस यूज की जाती थी, क्या करने के लिए, लोगों के अंदर नेशनलिज्म फीलिंग को क्रिएट करना। ग्रीम्स फेरी टेल, ग्रीम्स फेयर टेल बोल के, ग्रीम्स फेयर टेल मतलब ग्रीम्स एक राइटर थे, वो फेयर टेल लिखते थे, बाय जोकब एंड विलियम ग्रीम्स, हु पब्लिश्ड फर्स्ट टेल इन 1812। मतलब एक स्टोरी उन्होंने 1812 में क्या किया, पब्लिश किया। लेटर पब्लिश इन 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज में इन्होंने डिक्शनरी प्रोड्यूस किया, बनाया। फ्रेंच डोमिनेंस was considered a threat to German culture. फ्रेंच डोमिनेंस क्या थ्रेट माना गया जर्मन कल्चर के लिए, क्योंकि फ्रेंच वहां पे डोमिनेट कर रहा था। एंड देयर फोक टेल्स वेर यूजफुल फॉर द बिल्डिंग नेशनलिस्ट। मतलब ये हम देखें वेरियस कंट्री में कैसे लोगों ने ना अपने अपने अंदर में ये नेशनलिस्ट फीलिंग को क्रिएट किया था, ये डेवलप किया था, राइट। आप समझ रहे हो ना, ये सब वहां पे क्रिएट की गई थी। इसको हम बोलते हैं नेशनल फीलिंग। उस समय 1830 टू 1840 में 48 में क्रिएट की गई। इसके बाद आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। उस समय जो इकोनॉमिक कंडीशन थी लोगों की, वो बहुत ही बुरा था। क्या था, बहुत ही बुरा था। उसको एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कैसे बुरा था। 1830 years of economic hardship in Europe, क्योंकि डिक्टेटरशिप आ चुकी थी, कंजर्वेटिज्म चल रही थी, और यहाँ पे years of hardship हम इसको इसीलिए बोल रहे हैं कि उस समय फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका था, पॉपुलेशन माइग्रेट हो रहे थे अर्बन एरियाज में, और रहते थे कहाँ पे, स्लम्स में, और स्लम एरिया इंक्रीज हो रही थी। शिफ्ट कंपटीशन फ्रॉम चीप मशीन्स एंड इंपोर्ट्स। उस समय बहुत सारे चीप मशीन्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे हम मानते हैं, रैपिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड 1750 से लेकर 1860 के बीच में हुआ है। तो ये जो मशीन्स आ रहे थे, ये एक कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहा था, लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी। Peasants struggle under the burden of feudal dues and obligations where the aristocrat was in power. Aristocrat वहाँ power में थे, और बहुत सारे peasants जो burden थी feudal dues, इन लोगों को मिल नहीं रहे थे पैसा, ये सब में ये बहुत सारे प्रॉब्लम में थे। कौन, peasants लोग। Rise of food prices in the year of bad harvest aggravated the issue. जब फूड प्राइस इंक्रीज हुआ तो लोगों को कितना संभालेंगे, बम फूट गया। क्या हुआ, बम फूट गया। 1848 widespread food shortage, unemployment in Paris and Louis Philippe was the forced to flee. क्या हुआ पेरिस में, फ्रांस के जो है पेरिस में क्या हुआ, फूड शॉर्टेज दिखाया गया, लुइस फिलिप को हटा दिया गया, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड हुआ, रिपब्लिक बनाया गया, एंड ग्रांटेड सफरेज टू ऑल मैन अबव द, हटा दिया गया किसको, लुइस 16 को यहाँ पे हटा दिया गया क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड हुआ, रिपब्लिक नेशनल असेंबली, और इन लोगों ने ऑल द मैन, जो भी
21 ईयर से ज्यादा है उनको राइट टू वर्क, सबको काम मिलेगा, ऐसा एक लॉ पास किया गया। 1845 में वेबर इन सिल्सिया led revolt against the contractor who supplied them raw material and gave them order to finish the product but drastically reduce the payment। ये एक स्टोरी है उस समय की, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, फिर इसके अंदर हम जाते हैं क्लियर। ठीक है, तो यहाँ देखो ऐसे उस समय क्या होता था, ऐसे बहुत सारे विलेजेस हुआ करते थे, विलेजेस में बहुत सारे लोग रहा करते थे। ये लोग क्या करते थे, इनको रॉ मटेरियल दिया जाता था। बड़े बड़े सिटी में कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, इन लोगों को रॉ मटेरियल यहाँ पे देते थे। रॉ मटेरियल देने के बाद ये लोग क्या करते थे, वहां पे कपड़ा सिलते थे और एक फैब्रिक बनाते थे, फैब्रिक से ड्रेस बनाते थे, कपड़ा बनता था। कपड़ा बनने के बाद इसको फिर ये लोग परचेस करते थे। कौन? कॉन्ट्रैक्टर परचेस करते थे। फिर इसको इनको एक्सपोर्ट करना, बिजनेस करना, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ इनको देते थे, काम करवाते थे, फिर यहाँ से लेके जाते थे। ऐसा एक कल्चर उस समय डेवलप हो चुका था। और सिलसिला विलेज का एक ट्रेजेडी जो है वो हम थोड़ा ब्रीफली समझते हैं क्या है। ये एक्चुअल में क्या है देखो, द जर्नलिस्ट विलियम वोल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ सिल्सियन विलेज एज फॉलोज। क्या है, ये विलेज में 18,000 इनहैबिटेंट रहते थे। कितना? 18,000। कॉटन वेविंग इन द मोस्ट वाइडस्प्रेड ऑक्यूपेशन, ये गांव में कॉटन वेविंग की जाती। द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर इन एक्सट्रीम, क्या था, इनका बहुत सारी प्रॉब्लम थी। क्या था? द डेस्परेट नीड फॉर जॉब हैज बीन टेकन एडवांटेज और by the contractor to reduce the price of the cotton they order। अब ये समझना, इस गांव में इतने सारे लोग थे और जॉब नहीं मिलते थे, ये इनकी क्या मेजॉरिटी थी, और इसका फायदा कौन उठा रहा था? कॉन्ट्रैक्टर्स उठा रहे थे। कॉन्ट्रैक्टर्स कम पैसे में यहाँ पे काम करवा रहे थे। ऑन 4 जून 2 बजे लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स emerged from their home and marched in Paris up to the mansion of their contractor डिमांडिंग हायर वेजेस। जो वेजेस यहाँ पे कम मिल रहे थे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर कंपटीशन मार्केट के चलते वेजेस कम दे रहे थे। जो वेजेस कम मिल रही थी, इसको क्या किया, इसके लिए लोगों ने क्या किया, पेरिस में रोड में उतर गए। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉन एंड थ्रेटेड अल्टरनेटली, इनको थ्रेट किया गया, भाई कोई पूछा नहीं, थ्रेट किया गया घर जाओ, बहुत सारी चीजें। Following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window panes, furniture, porcelains, बहुत सारी चीजें वहां पर तोड़ फोड़। Another group broke into the storehouses, बहुत सारे लोग क्या गए, स्टोर हाउसेस में घुस गए। Plundered, plunder मतलब लूटना, its supply and cloth and the tore and क्या किए, बहुत सारे कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिए उस समय, अंदर घुस के स्टोर रूम में। उसके बाद द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू द नेबर विलेज, कॉन्ट्रैक्टर वहां से भाग के नेबर विलेज में चला गया। हाउएवर ये जो रेफ्यूज्ड शेल्टर, ऐसे पर्सन को कौन गांव में विलेज में बना देगा, कोई नहीं दिया। और ये जब रिटर्न आया रिक्विजिट विद द आर्मी, आर्मी अपने साथ थे क्योंकि वो पैसे वाले लोग थे, आर्मी उनके पास रहता था, गवर्नमेंट को बोल के, मोनार्क को बोल के आर्मी हायर कर सकते, आर्मी लिए। और इस एक्सचेंज में क्या हुआ, 11 वेवर्स को मार दिया गया। इसको सिलसिला सिलेसियन ट्रेजेडी बोला जाता है। इसको हाईलाइट किया था जर्नलिस्ट ने, कौन? विल्हेम वोल्फ, राइट। तो अभी हम आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं द रिवोल्ट इन द लिबरल्स, द रिवोल्ट ऑफ द लिबरल्स। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रॉड एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क। इस समय क्या हुआ था, जितने भी मोनार्क थे उन लोगों को हटा दिया जा रहा था। रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल मेल सफरेज उस समय शुरू हो चुका था। जर्मनी, इटली, पोलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, men, women of the liberal middle classes combined their demand for the constitutionalism with national unification, constitution, freedom of press and freedom association। उस समय ये भी शुरू हो चुका था, मतलब 1848 रेवोल्यूशन के लिबरल ने इतना सब डिमांड किया था। इन जर्मनी क्या हुआ, जर्मन नेशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 18 मई 1848 with 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उस समय 18 मई 1848 में जर्मन नेशनल असेंबली बनाई गई, उसमें 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहे। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशंस टू बी हेडेड बाय मोनार्क। फिर मोनार्क फ्रेडरिक विलियम IV, king of Prussia, rejected it and joined the other monarch to oppose the elected assembly। आप समझो, इलेक्टेड असेंबली जो बनाया गया, अदर मोनार्क ज्वाइन किया, कौन? जो विलियम IV थे। उसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास हु रेसिस्ट वर्कर
demands. Assembly was disbanded and troops were called in. उस समय ये जो समझौता इन लोगों में हो नहीं पाए, assembly में troops घुस गए. Women formed political associations, founded newspapers, and took part in the political meeting, but were denied suffrage rights. Political meeting में आए, मतलब suffrage rights उनका नहीं दिया गया. In Frankfurt Parliament, in the Church of St. Paul, women were admitted only as observer to stand in the visitor gallery. Women को उतना भी rights नहीं दिया गया, सिर्फ visitor gallery में वो खड़े हो सकते हैं, voting right का अधिकार उस समय. Louis Otto Peter, 1995 में, was a political activist who founded a women's journal and subsequently a feminist political association aware about the women's rights and interest. उस समय एक Louis Otto Peter कौन है आपको पूछा जा सकता है. Monarch realized that the cycle of revolutions and repressions could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. अभी monarch को ये समझ में आया, liberal nationalist जो थे उनको देना पड़ेगा concession, नहीं तो हम आगे नहीं चल पाएंगे. After 1848, autocratic monarchies of the Central and Eastern Europe began to introduce changes that had already taken place in Western Europe before 1850. मतलब ये जो चेंजेस हुआ था ईस्टर्न और वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न में क्या हुआ, शुरू होने लगा, जो 1815 में वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में ऑलरेडी शुरू हो चुका था. Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg dominion in Russia. Habsburg ruler granted more autonomy in the Hungarian in Italy. अब समझो इतने सारे रिवॉल्ट हुए, रिवॉल्ट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लग गया था. सब कुछ मतलब मोनार्क मानने लगे थे, वहां पे लोगों को लिबरल मतलब कुछ कंसेशन देने लगे थे, राइट्स जैसे वोटिंग राइट्स हो गया, प्रॉपर राइट प्रॉपर्टी हो गया, ये सब धीरे धीरे शुरू हो चुका. राइट, इसके साथ ही आपका ये जो 1830 से 1848 का पार्ट खत्म होता है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे unification of Italy, unification of Germany and